Good morning. Thank you that you did not call me Reverend. Let me get settled down here. My second request, when I come, don't clap. I'm not here for competition, I'm not a guest. Rather, clap for him because it is much more a difficult job to translate than to preach. मेरी दूसरी निवेदन आपसे ये है कि आप जब कभी मैं यहाँ पर आए तो आप मुझे तालियों से स्वागत ना करें, लेकिन अनुवादक के लिए आप जरूर तालियां बजा सकते हैं क्योंकि अनुवाद करना बहुत ही कठिन काम होता है। He has to concentrate two things, the message and the word. I can speak anything, but he has to speak only my word. और संदेश और शब्द के ऊपर में ध्यान देना पड़ता है। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन उन्हें संदेश के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। I'm not a good singer. मैं बहुत ही अच्छा गायक नहीं हूँ। And I do not know, sometimes I share with the class, but I do not know whether there is one chord in 7 guitar and 7 guitar, one chord. I am confused. अक्सर मैं इस बात को कहते रहता हूँ कि गिटार के अंदर में 7 कॉर्ड होते हैं या 7 कॉर्ड में गिटार होता है, मुझे आज तक नहीं मालूम। The song is very good. बहुत ही अच्छा ये जो गीत गाया गया बहुत ही अच्छा था। When I go to Anglican churches, they sing the hymns so beautiful. जब मैं एंग्लिकन कलीसिया में जाता हूँ तो वहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से गाया जाता है। Same hymns I listen to charismatic and Pentecostal churches is totally different. और वही गीतों को मैं करिश्माटिक और पेंटिकोस्टल में सुनता हूँ, ये बिल्कुल ही अलग होता है। The same song I heard is a different pitch and a different tone what we listen today. जो गीत को हमने आज के दिन सुना है वही, अगर आप इस उतार चढ़ाव को देखें, अगर आप इस गीत के लय को देखें, ये बिल्कुल ही आज के गायक के गीत से अलग था। Thank God I'm not a singer. प्रभु का धन्यवाद कि मैं कोई गायक नहीं हूँ। Thank God many of you are good singers. लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप में से बहुत से बहुत ही अच्छे गायक हैं। For a small 30-minute meditation, let's turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 3. आइए आज के सुबह के मनन के लिए हम अपने अपनी बाइबलों को पहले कोरिन्थियों की पत्री में खोलेंगे। 1 Corinthians chapter 3 verses 5 to 15. पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसमें 5 से लेकर के 15 आयत तक हम देखेंगे। I request Samson to read it in Hindi or in the language. 3:5 से लेकर के 15 अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांच या पानी खाएगा। This morning I want to give you my own translation. It says like this: what is Apollos really? Or what is Paul? Servants through whom you came to believe. And each of us in the ministry the Lord gave us. I planted, Apollos watered, but God caused it to grow. So neither the one who plants counts for anything, nor the one who waters, but God who causes the growth. The one who plants and the one who waters works as one, but each will receive his reward according to his work. We are co-workers belonging to God. You are God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, but someone else builds on it. And each
one must be careful how he builds. For no one can lay any foundation other than what has been laid, which is Jesus Christ. Anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, each builder's work will be plainly seen. For the day will make it clear, because it will be revealed by fire. And the fire will test what kind of work each has done. If what someone has built survives, he will receive a reward. If someone's works is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only through fire. Let's pray. Father, we thank you for your word. पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। Hide me behind your cross and speak to your people, build your church and take glory. प्रभु जी मुझे क्रूस के पीछे छुपा ले और अपने महिमा के लिए हमें और अपने लोगों को तू बना और उसका उनका निर्माण कर। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। We all know about Corinthian church. हम सब कोरिन्थ की कलीसिया को जानते हैं। Someone said like this, the church was in the word, but also the word was inside the church. किसी ने इस बात को कहा है कि ये कलीसिया संसार में है, लेकिन सांसारिकता भी इस कलीसिया में थी। It was the most charismatic and powerful church, yet sinful church. और ये तो बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सामर्थ्य कलीसिया रहा, लेकिन फिर भी ये कलीसिया पाप में डूबा था। They experienced God's presence so powerfully, yet the work of devil was very visible. परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े कठिन परिश्रम के साथ में ये काम तो किया करते, लेकिन उनके मध्य में शैतान भी काम करता। In overall things, Paul is writing to this church, Corinthians church, the two letters about how the God works will be done. और इन दो पत्रियों में जो पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया को लिखा है, उसमें पौलुस इस बात को बताने का प्रयास करता है कि कैसे परमेश्वर काम करता है या कार्यरत होता है। Our text comes under the broader text of 1 Corinthians 3:5-23. और हमारा जो आज का परिचय रहा है, उसका अगर आप विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करें, उसका 3 उसके 5 से लेकर 23 तक होता है। Here Paul talks about the church belongs to God. In other words, he is saying everything in God's ministry belongs to God, no one else. और यहाँ पर पौलुस इस बात को बताने का प्रयास करता है, कलीसिया परमेश्वर का है और जो कुछ भी कलीसिया में या परमेश्वर का जो भी काम है, वो सब कुछ परमेश्वर का है, किसी और का नहीं हो सकता। Why Paul says that? If you read the previous chapter, Paul is saying you are fighting, you are doing this. These are all not spiritual. You are infant, you are not mature. That is what Paul is saying. In one word, the theology is giving the ministry, the church, the people, the co-laborers, everyone belongs to God and God alone. अगर आप इससे पहले पौलुस की बातों को देखिए, तो पौलुस खपा होकर के इन बातों को कहता है कि तुम्हारे मुट्ठी में झगड़े हैं, तगड़े हैं, फूट है, तुम्हारे आपस में एकता नहीं है, कलीसिया को डांटता है। अंततः पौलुस धर्मवैज्ञानिक कथन के अनुसार एक वाक्य में अपने पद को पूरा करते हुए कहता है कि सहकर्मी हो, काम करने वाले हैं, मजदूर हो, राजमिस्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, सब लोग परमेश्वर के एक काम को अंजाम देते हैं। Everything belongs to God because He is the creator of everything. सब कुछ परमेश्वर का है क्योंकि वो पूरे कायनात का सृजनहारा है। Coming back to the text that we read, हमने जो परिचय को पढ़ा है, वापस उसमें आते हुए basically we can divide the text into two groups. और हम मूलतः इस परिचय को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। And in the two groups you can see that there are two metaphors and one picture. अगर आप इन दो झुंडों में देखें तो इसमें एक चित्र है और दो इसके अंदर में प्रतीक है। The first group comes to verses 5-9. और पहला झुंड आता है 5 से लेकर के 9। And following the group falls into second group of people. और दूसरे बच्चे में आए तो में दूसरा झुंड आता है। In the first verses 5-9 is addressed to the leaders and the ministers who are the co-workers with a joint purpose. अगर आप 5 से लेकर के 9 आयतों को देखेंगे तो वो ये उन सहकर्मियों के, उन काम करने वालों के बताया जा रहा है जो इस सेवकाई के अंदर में हाथ बढ़ाते या सहकर्मी है या सेवक है। It is very interesting to know that co-laborers with a single purpose. और कितना रुचिकर बात है कि ये जो सब सहकर्मी मिलकर काम करने वाले एक उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। When we understand the purpose is single, then only
single purpose. सारे सहकर्मी एक उद्देश्य के साथ। In verse 5, Paul says like that, it is immaturity, shows that it is immaturity on the part of the workers, co-workers, who fall into personality clashes and make their own disciples rather than making disciples of Jesus, which is the great commission given to the by the Master himself. अगर आप आज में आपने देखेंगे वहाँ पर पौलुस इस बात को बताने का प्रयास करता है कि हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लड़ाई में लड़ते हुए अपने अपने चेहरों को बनाने का, अपने झूठ को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी अपरिपक्वता है और प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा स्वामी है उसके एकमात्र उद्देश्य को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। Finally, leaders, he says, who are leaders? Mere workers, and the word called mere labor in God's field, God's vineyard. और अंततः ये सेवक कौन है? ये मात्र मजदूर है, ये केवल काम करने वाले हैं। परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर की दास की भांति में ये सब काम करने वाले महज और सिर्फ काम करने वाले हैं। If you see the first metaphor Paul uses of the vineyard, he definitely has taken from Isaiah 5, chapter 5, 1 to 6, where Isaiah used God's vineyard for Israel of Yahweh's vineyard. अगर आप पौलुस की बात करें तो अगर उसने दाऊद की बात का जब उदाहरण लिया, यकीनन उसने यशायाह उसके 5 अध्याय 1 से लेकर 6 जहां पर परमेश्वर ने दाऊद की वाणी को अपने और इस्राएल के साथ में दर्शाने के लिए जो उपयोग किया, वही दृष्टांत को ये भी लेता है। What Paul says in verse 5, I planted, this is saying, I planted something. और वहां पर 5 में आपने क्या कहता है? मैंने कुछ रोपा है, मैंने कुछ लगाया है। Verse 6 says, Paul says, I planted somebody or something. और 6 में आपने कहता, मैंने कुछ रोपा, मैंने कुछ लगाया, किसी को मैंने रखा। In 6b, he will say, someone else, he is pointing towards Apollos, another great figure of the Corinthian church. This he worker, nothing else. और दूसरे लोगों के तरफ में जो कि अपोलोस हो सकता है, उनके दूसरे तरफ में उनको दर्शाते हुए वो कहता है कि उन्होंने जो काम किया है महज और महज काम करने वाले हैं और कुछ नहीं। If you look at verse 7a, 8a, 9a, he says they are laborers, co-workers, one workers with single purpose, which I already said to you. और 7 उसके 9 पहले भाग में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, पौलुस इस बात को दर्शाने का प्रयास करता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब काम करने वाले सहकर्मी मजदूर है जो एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। Then again in verse 7b and 9b, with one stroke he says, he takes out all the boasting of the people, of the leaders, and he says, you only work in God's vineyard. It is God who gives the growth. और अगर 7 के दूसरे भाग में, 9 के दूसरे भाग में यदि आप देखें, ये सारे सेवा करने वालों के इन ढीके मारने वाले, इन अपने आप को फूलने वाली बातों को लेते हुए इस बात को दर्शाता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर की दास की वाणी में काम करने वाले एक मजदूर भर हो, इससे बढ़कर के तुम और कुछ नहीं। But he himself is keeping in that mode. He says, I'm also nothing. I'm mere a laborer. I'm mere a servant. And it is God who gives the growth. And it is God who brings the fruit. और अपने आप को उसमें शामिल करते हुए पौलुस इस बात को कहता है, मैं भी एक मजदूर हूँ, महज एक काम करने वाला, परमेश्वर के इस उद्देश्य में, परमेश्वर की सिद्धांत की वाणी में मैं भी काम करने वाला हूँ। और परमेश्वर है जो बढ़ोतरी देता, परमेश्वर है फल देता है। Plants, crops, they need care and they need to be taken care of. और इन सब बातों के लिए उनका ध्यान रखा जाना, उनकी सुधि लेना, उनका देखभाल करना जरूरी होता है। Many of you may be coming from an agricultural background. हो सकता है आप में से बहुत सारे खेती बाड़ी के पृष्ठभूमि से आते होंगे। You know how a plant needs to be taken care of until the day of the fruit. आप जानते हैं कि एक पौधे को बढ़ करके फल लाने के उम्र तक कितनी देखभाल करनी पड़ती है। Right kind of manure, right amount of water, abundance of manure, right place. The manure should go in the right places. That brings at the end of the day fruits. ये पेड़ को एक तो सही जगह होना चाहिए, पेड़ की सिंचाई के लिए पानी का होना अत्यावश्यक है, इसके लिए उर्वरक डालना बहुत ही जरूरी है, इसके बढ़ोतरी के लिए और ज्यादा औषधि, और ज्यादा उत्पादक गुण वाले उर्वरक का डालना इसमें जरूरी होता है। After my
जिसमें कुछ नहीं कर रहे थे We only used to play cricket and cricket and cricket, nothing else. और हम इसमें केवल क्रिकेट और इस खाली समय में केवल क्रिकेट और कुछ नहीं करते। My friends had huge farms, मेरे दोस्तों के पास में बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी and there was a suggestion that came up, why don't we go and play our time in the farmhouse by the time we can also do some kind of agriculture. और सबने ये सहमति जताई और सबने इस बात को कहा कि क्यों ना हम जाकर के खेती बाड़ी में अपना समय बिताएं और जिसके द्वारा से हम वहां से कुछ न कुछ उत्पादक चीजों को हम हासिल कर सके। And when we get the food, we can sell it in the market, local market, and by that we can purchase our cricket gears and bats and whatever we want. और इस खेती बाड़ी से जो कुछ भी हम पैदा करेंगे उस पैदावार को ले जा करके हम बाजार में यदि बेचेंगे तो हमारे क्रिकेट खेलने के लिए जो भी बल्ला लगता है, गेंद लगता है, जो भी चाहिए है वो सामान हम इससे खरीद सकते हैं। We started the work very passionately. हमने बड़े जलन के साथ, इच्छा के साथ काम को शुरू किया, And all went wrong. लेकिन सब कुछ गलत हो गया। We never knew what kind of manure to put, where to put, how much water to put. Instead of the plant grow up and give us fruit, it all burned up and it gone within 2 months of whatever we have done. और हमें इन पौधों की बढ़ोतरी के लिए कितना उर्वरक डालना है, कितना उपजाऊपन डालना है, कितना पानी डालना है, सींचना कैसे है, क्या करना है, मालूम नहीं था। पेड़ों को बढ़ करके फल देने के बजाय ये जलकर मर गए। And we had a fighting among us only. और This is you, this is you, this is you. Everyone gave their own reasons for others because of the loss. और हम में से अब हर कोई एक दूसरे के ऊपर में छींटाकशी करने लगा, हमारे बीच में झगड़े होने लगे, तेरे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, ये तुमने किया, और हमेशा से ही गड़बड़ियां होती रही। Very sadly, the church is most of the time goes through these things. लेकिन बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, कई बार कलीसिया भी ऐसे ही परिस्थिति से गुजरता है। Those who supposed to be thinking themselves laborers, servants, they think themselves king of the church or queens of the church. और जिनको कलीसिया के अंदर में सेवक के रूप में, मजदूर के रूप में, काम करने वाले के रूप में समझना चाहिए, वो अपने आप को राजा, अपने आप को रानी समझने लगे हैं। They forget the real king, the king of all kings, the Lord of lords, all lords, though they remember him sometime. और वे अपने राजाओं के राजा और महान परमेश्वर को वो भूल गए, हालांकि कई बार उसे याद जरूर कर लिया करते हैं। They make their own rules by their way of teaching or yeah, otherwise they bend the rules and twist the rules here and there so that they will have a fan followers. और वो कभी ना कहीं ऐसा कुछ कर देते हैं, किसी ना किसी चीज को मोड़ देते हैं, झुका देते हैं, अपने तरीके से अपने नियमों को बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं ताकि उनका काम बनता रहे। Is this a sign of a spiritual biblical servant or leader? क्या ये बाइबल आधारित आत्मिक कलीसिया का सेवक के सच्चे गुण है? This kind of leadership is a worldly leadership. नहीं, ये नेतृत्वपन बाइबल आधारित नहीं है, ये सांसारिक वाला नेतृत्वपन है। You see, any political leader today who is in high post, high status, they have to show their masters how many fan followers they have. With their one right or wrong word, people will ready to die. और अगर आप बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए राजनेताओं को यदि देखेंगे तो आप देखने पाएंगे उनके पीछे चलने वाले झुंड की एक बहुतायता है और वो अनुकरण करने वाले मारने काटने तक तैयार हो जाते हैं। They do not know whether some of their leader is telling right thing, wrong thing, whether it's a good person, whether it's a thief, murderer, robber. They follow him blindly. और वो अपने राजनेता कि वो सही है या गलत है, चोर है, डाकू है, हत्यारा है, भ्रष्टाचारी है, कुछ नहीं, वो क्या कहता है बस वो हमारा राजनेता है, इससे ज्यादा उनको उससे कोई मतलब नहीं। Spiritual leader in the church should not be like that. लेकिन एक आत्मिक नेतृत्वपन करने वाले अगुवे को कलीसिया के अंदर में प्रभु के इस सेवा में ऐसा नहीं होना चाहिए। We should be careful of making disciples of Jesus, not of me and anybody else. हम
जब चेले बनाते हैं इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि ये चेले मैं अपने लिए नहीं, लेकिन ये चेले मैं यीशु मसीह के लिए बना रहा हूँ। That is why God gave us the facility of mentors. और इसलिए तो परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन करने वाले, दिशा निर्देशन करने वाले शिक्षकों को दे रखा है। I had a wonderful mentor in my early days of discipleship. और मेरे नेतृत्वपन के सफर में मेरा एक बहुत ही सुंदर मार्गदर्शक रहा। He sacrificed his life for me. उसने मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। He would work all day hard, and in our Bible class will start one-on-one on the terrace of his school from 9:30 to 3:30, 4:30, whole night he will not sleep and giving answers to my questions. और मेरे शिक्षक ऐसे रहे हैं कि हमारा जो बाइबल कॉलेज छत के ऊपर में पूरा दिन हम क्लास लगाए जाते, 9:30 बजे से लेकर 3:30, फिर 4:30, और इस तरह से वो शिक्षक पूरी रात मेरे साथ में रहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। It is he who got the first opportunity to go and do some theological study. He said, "No, I know certain things. It is today he has to go and take the theological education more than me." और उन्हें अवसर कि वो जाकर के धर्म विज्ञान की कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने ये कहा नहीं, उदय को मुझसे ज्यादा धर्म विज्ञान की पढ़ाई और उसकी शिक्षा लेना मुझसे ज्यादा जरूरी है। When I came back, I confronted him. Actually, we were sitting, we are friends, we became best friends, and I said to him, "Sir, this is not wrong, this is not right, this is wrong." And the humility of the person is, when I explained him everything, I gave the reason, he accepted the things that I said to him, being his student. और जब मैं वापस आया, उनके साथ में मेरी मुलाकात हुई, हम बैठे, दोस्त के समान हम व्यवहार करने लगे। जब मैं कुछ मुद्दों पर, बातों पर ये बात को कहता कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, अपने सही और गलत के पीछे जब मैं कोई तर्क प्रस्तुत करता, वो आदमी इतना हलीम था, इतना दीन था कि उसने बड़ी विनम्रता के साथ में उन बातों को ग्रहण किया और उन बातों को स्वीकार किया। I am sure you all have such kind of mentors in your life. और मैं पूरे यकीनी तौर पर यह कह सकता हूँ, आपके भी जीवन में ऐसे ही मार्गदर्शक होंगे। During my MTH, I had a prayer partner. MTH के दौरान हमारे प्रार्थना सहयोगी थे। Wonderful man from Myanmar. म्यांमार से आया हुआ सुंदर व्यक्ति। If I miss one lunch, one meal in a day, he will knock at my door and he say, everything going right? Let's sit down and pray for a moment. अगर मैं रात के एक भोजन को चूक जाऊं, अगर मैं जहाँ के एक भोजन को मैं चूक जाऊं, वो व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देता और मुझसे पूछता, क्या भाई सब कुछ सही है कि नहीं, आओ हम मिलकर बैठ करके प्रार्थना करें। ऐसा वो व्यक्ति रहा। The question comes to me, what kind of disciple actually I am making in God's vineyard? अब प्रश्न मेरे पास में ये आता है, परमेश्वर की दात की बारी में मैं किस प्रकार के चेलों को तैयार कर रहा हूँ, How I am nourishing them? मैं उनको कैसे पोषक तत्व प्रदान कर रहा हूँ। I am leaving this question with all of us. मैं आज के दिन में ये प्रश्न को सबके साथ में छोड़ना चाहता। Why? Because there are reasons that Paul gives in the subsequent verses. और क्यों? इसका कारण है, बाद वाले आयतों में पौलुस ने इसका कारण दे रखा है। As we move on, जब हम आगे बढ़ते हैं, In the subsequent verses that we find, Paul says, laborers and co-workers will get reward, but only when it is tested through fire. और आगे बढ़ते हुए आगे की आयतों में प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, सहकर्मियों को, काम करने वालों को, मजदूरों को प्रतिफल तो मिलता है, लेकिन आग के द्वारा परखे जाने के बाद ही। Paul explains this in verses 10 to 15. 10 से लेकर के 15 आयतों में पौलुस इस बात को वर्णन करता है। very cleverly, like a master orator, Apostle Paul changes his metaphor from vineyard, from agriculture, to a building constructor or a mason or an architectural engineer. और ये बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में एक बहुत ही निपुण वक्ता के रूप में, वार्ताकार के रूप में ये पौलुस अपने उस उदाहरण को, प्रतीक को, जो परमेश्वर के राज्य को काम को दर्शाने के लिए एक दाख की बारी का, एक खेत की बारी का उदाहरण को उसने लिया है, बड़ी निपुणता के साथ में उसे बदलते हुए
राज्य मिस्त्री की बात करता है। Paul definitely uses God's building as the church, as collectively as we are sitting here, not individual church here. और पौलुस बड़े बुद्धिमत्ता से परमेश्वर के इस निर्माण कार्य को कलीसिया के साथ में जोड़ते हुए इस बात को कहता है, जैसे कि सामूहिक रूप से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये काम एक सामूहिक रूप से है, एक अकेले व्यक्ति का नहीं है। In verse 16 he says, you are the temple of the Holy Spirit. और 16वें आयत में कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। I have never heard anybody preaching, everybody preaches that you are the temple of the Holy Spirit, only individuals. और मैंने कई बार प्रचारकों को इस बात को कहते हुए सुना है, बहुत देर बाद मैंने इस बात को जांचा देखा है कि प्रचारक इस बात को कहते हैं एक व्यक्ति को लेकर के कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Now, it is the advantage of reading the original text. When I opened the original text, I understood the personal pronoun here is in plural. He is talking about the church of Corinth that is collective. और मूल भाषा का पढ़ने का एक और हमारे जीवन में जो लाभप्रद बात है वो ये कि जब मैंने इस बात को मूल भाषा में जाकर के जब मैं इसे खोला और जब मैं इसे पढ़ने लगा तो वहां पर एक वचन का नहीं बहुवचन का इस्तेमाल करते हुए पूरे सामूहिक रूप से पौलुस इस बात को कहता है कलीसिया पवित्र आत्मा की मंदिर है। Paul says, I like a skilled master builder, I build on it. और पौलुस इस बात को कहता है एक राजमिस्त्री के समान मैंने निपुणता के साथ में इसके ऊपर में बनाया। He says that in verse 10 when Paul uses this picture of master builder, definitely he took the beautiful buildings of the city of Corinth. और जब उसने 10 आयत में इस राजमिस्त्री की बात किया और निर्माण की बात किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यकीनन पौलुस ने कोरिन्थ में पाए जाने वाले सुंदर खूबसूरत इमारतों को लेकर के ये बात को कहा। Then again next, in verse 10 he changes his tone from encouraging to warning and caution. और 10 आयत से फिर आगे बढ़ते हुए पौलुस बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में लोगों को चेतावनी देते हुए उन्हें सजग और उन्हें सक्रिय करने वाली बातें करता है। He says, be careful on what foundation some servants of some people of God, laborers of God is building the building. और कहता है सावधान रहो कि ये जो मजदूर है, ये जो काम करने वाले हैं, कौन से बुनियाद के ऊपर में ये बनाते हैं, चौकसी बरतो। In 11 he says the foundation is only one foundation, that is the Messiah Christ. और क्या आयत में आगे बढ़कर के वो कहता है एक ही बुनियाद है, एक ही नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Then again he gives the materials for the building in a descending order. और फिर बाद में अगर आप देखेंगे तो इस इमारत के निर्माण वस्तुओं को वो एक ऐसे क्रम में देता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर आती है। There are 6 materials Paul mentioned. ये सामग्री है जिसके बारे में पौलुस जिक्र करता है। I love to go visit places. मुझे जगह जगह जाकर जगहों को देखना अच्छा लगता I है। love to go and see sightseeing. मैं दृश्यों को जाकर के देखना मुझे अच्छा लगता है I love to see good constructions. और मुझे अच्छे इमारत के निर्माण को देखना अच्छा लगता है। When I came to HRC, जब मैं इटारसी आया I saw the buildings here. मैंने यहाँ की इमारतों को देखा I saw where I stay now. और अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर देखा I saw the construction work is not good. और मैंने देखा कि निर्माण कार्य अच्छा नहीं है I saw the materials are inferior. और मैंने देखा कि ये जो निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया वो निचले दर्जे के हैं। I tried to smell even the paints on the door, but I saw the doors are already gone. और मैंने सूंघ कर दरवाजों के पेंट को पता करने की कोशिश की लेकिन दरवाजे तो खत्म हो चुके हैं। I visited other day in Bentur, there I saw the new houses, the roofs are dripping. और मैंने एक अगले दिन की बात बता रहा हूँ, पिछले दिन की मैं बैतूल गया, वहां पर एक निर्माण कार्य को देखा, वो छत में तो अभी से पानी टपक रहा है। Comparing to that, we all went to the grand opening of our new sanctuary in Deshpur. और इन सबका तुलना करते हुए हमने अपने भव्य उद्घाटन में देशबंधुपुरा के नए कलीसिया में हमने प्रवेश किया। That is a master
स्थान का वो एक नमूना है। Everything compared to other places are at its best. और बाकी चीजों की तुलना अगर उससे करें वो तो सर्वोत्तम है। That is why Paul uses the first three things: gold, silver, and precious stones, which is used in Solomon's temple to build the present church. और इसलिए और पहले तीन निर्माण के सामग्रियों का नाम लेकर हुए कहता है सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, जो सुलेमान के मंदिर के बनाते समय में इन बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग किया। And the second group of three things are inferior quality, which cannot stand and last long. लेकिन बाकी तीन बातों को वो जो निर्माण सामग्री को जो गिनता है वो निचले दर्जे के हैं। इनके साथ में उनका क्या काम है? I was thinking, why should I consider about all these things? मैंने सोचा इन सब बातों को मैं आखिरकार क्यों इन बातों के ऊपर मैं विमर्श करूं? A farmer or an architecture or anybody per se works for the reward. और अगर आप एक किसान की बात करें, राजमिस्त्री की बात करें, कोई भी काम करें, हर एक काम अपने फल के लिए किया जाता है। And we will get our rewards only by testing the fire that Paul explains in next few verses. अगले कुछ चंद आयतों में पौलुस जिस बात की जिक्र करता है, हम अपना प्रतिफल केवल उस आग के परखे जाने के द्वारा से ही प्राप्त कर सकते हैं। That makes me fearful. ये मुझे डरा देता है, That gives me a warning. और ये मुझे चेतावनी देता है, That pumps in my heart the passion to serve God. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये मेरे हृदय में और ज्यादा जलन पैदा करता है। Only with one thing, that my work will be exposed only with fire. और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आग के द्वारा इसका जांच किया जाएगा। That is why I don't work for organizations. I only work for God and God alone. और इसलिए मैं संस्थाओं के लिए काम नहीं करता, मैं केवल परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। In His fear only, I try to give my 100%, whether good or bad, on that day it will be reviewed. और मैं इसी आधार पर परमेश्वर के काम में अपना 100% प्रदान करता हूँ। भला है बुरा है वो दिन में फैसला होगा। All things are for the laborers. सब कुछ मजदूरी करने वालों के लिए है। I was thinking, what can I talk about the students here? मैं सोचने लगा इस बाबत विद्यार्थियों से मैं क्या बात करूं? What can they take home from today's meditation? और फिर बाद में इन सब बातों का इन विद्यार्थियों के साथ में क्या तालमेल है? They are very clever. बहुत ही बुद्धिमान है, They know everything. उन्हें सब कुछ पता है। They may say, nothing is, you did not say anything for us. वो लोग कहे हमारे लिए तो आपने कुछ भी नहीं कहा। No. Don't be in self-deception. You are the leader for tomorrow. आप अपने आप धोखा ना खाएं, आप आने वाले कल के अगुवे हैं। Some of you will graduate within 6 to 8 months from this college. और आप में से बहुत सारे 6 से लेकर 8 महीने के बाद यहाँ से स्नातक का प्राप्त करके जाएंगे। You will be associate pastors, you will be pastors, you will be leading people, and you will be discipling your disciples. और आप अपने क्षेत्र में जाकर के पासवान, सह पासवान, अगुवे और अपने चेलों का मार्गदर्शन करने वाले बनेंगे। My friends, the opportunity that you got, there are many outside who did not get all this opportunity. और कितनी महान बात है कि आपको ये सबसे बड़ा सुअवसर मिला। बाहर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये अवसर प्रदान नहीं हुआ। Bury yourself in the books. अपने आप को किताबों में दफन कर दो। Bury yourself in the library. अपने आप को पुस्तकालय में कैद कर दो। You may not have understand everything, हो सकता है सब कुछ आपके समझ में ना आए, but if you hit hard the rock in your hand, that is the rock that will crumble down and you will understand everything. और फिर ये वो चट्टान है, इसे उठाओ अपने सर पे मारते रहो, ये चट्टान टूट कर गिरेगा, आपको समझ में फिर आएगा। Don't waste your time in following fanfares. और आप केवल यूं ही ऐसे ही हवा की बातों का पीछा ना करें। A weak mother cannot feed her child and make her strong. और एक कमजोर माँ अपने बच्चे का पोषण करके उसे तगड़ा नहीं बना सकती। If you are not filled with God's word tomorrow, you cannot defend your church. Tomorrow you cannot feed your disciples.
को, अपने चेहरों को आप छीना नहीं पाएंगे। Don't think everything coming easy. ऐसा ना सोचे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। Even the salvation of ours did not come in very easy. और यहाँ तक कि हमारा उद्धार भी आसानी से नहीं आया। Yes, we got it free, हाँ, ये हमें सेंटिमेंट में मिला, but God the Father has to sacrifice His Son, and God the Messiah has to pay His life. लेकिन पिता परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र, अपने इकलौते बेटे को देना पड़ा, और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीहा को अपने जान को कुर्बान करना पड़ा। I told you when I went first time for Bible studies, I was the only one who had no clue what is Bible studies. और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैं पहली बार बाइबल कॉलेज में गया तो ये बाइबल अध्ययन क्या है इसका मुझे थोड़ा भी जानकारी नहीं था। I had to fight with 21 PTH or TTS students to come bring my level up to their level. और मुझे कम से कम 20-21 ऐसे बीटीएच और डीटीएच के विद्यार्थियों से मुझे लड़ना पड़ा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उस स्तर तक आने के लिए। I cancelled all my leaves, all my celebrations only to come up to their level. और मैंने अपने सारे छुट्टियों को रद्द कर दिया, अपने सारे उत्सव मनाने के दिनों को मैंने रद्द कर दिया ताकि मैं उनके स्तर तक अपने आप को लेकर जा सकूं। And the God of glory did not ashame me. और महिमा के परमेश्वर ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। The day I committed that God, my study will only to serve you and serve you better, your people, your church, I started to fly high. और उस दिन मैंने जब ये दिन प्रभु कि मेरा ये पढ़ने का उद्देश्य केवल तेरी सेवा करना, तेरे लोगों की, तेरे भेड़ों की चरवाही करना, सेवा करना, उस दिन से मैं मानो जैसे पंख लग गए, मैं उड़ने लगा। Don't be in self-deception when Paul says few verses later. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पौलुस इस बात को हमें कहता है कि हम मजदूर है, काम करने वाले हैं, इस बात को अच्छी तरह समझे, अपने आप के धोखे में न रहे। God will give us a handsome reward the day of His creation. और परमेश्वर अपने उस दिन में हमें बहुत ही अच्छे प्रतिफल से हमें फल देगा। It is always a joy as a leader to see somebody whom you disciple doing great things in the stage and in the ministry and anywhere. और एक अगुवा होने के नाते हमेशा ये बड़ी खुशी की बात होती है कि आपके सिखाने में एक ऐसा चेहरा जो एक उच्चतम स्थान पर पहुंच करके, एक ऐसे मंच पर पहुंच करके जो एक अच्छा काम कर रहा हो, ये देख करके बहुत सुकून मिलता है। Let's not deceive ourselves, but let's be mature and work hard, each one of us for getting there. और हम में से हर कोई अपने आप को धोखा ना देते हुए हम इस तरह से परिश्रम करें कि हर कोई अपने परिश्रम का इनाम, प्रतिफल पाने वाला हो सके। Thank you very much. God bless you. Thank God for this wonderful opportunity God has given to us that we are able to hear the heartbeat of God this morning. When we find problems in the area of leadership, when the people they fight each other for their positions within the church community, there's a great plan for the leaders for the church from God. Let us understand that. And we have heard very nicely and clearly, specifically through God's servant, Reverend Uday, though he does not want to be called as Reverend. May God bless his servant as he has the passion and zeal for God's work and for him alone. Let's take those words in our lives as we are God's servants, maid servants and men servants. Let us follow the principles that God has given to us to abide with. And the thing when he says, last time also he said, he does not want to be called as a reverend. Of course that is a great thing.
because I just look at the other places, all the pastors becoming reverends, because when you check the notices which is published by different churches, all those pastors are turning to reverends, because it's the way they look at these things. But it is not about the thing that we hold, the prospects, the credentials that we have, but the main thing that we focused on was this: we have to be faithful in the Lord's ministry. May the Lord bless all of us as we carry the fire of God within us, as we carry the passion and zeal within us, that we may be able to fulfill what our God has planned for us. And I'd like to announce a few things. And this direction is given from the academic office. Please listen very carefully. The first thing, specifically to the brothers, and it is noticed by our vice principal, that when you come from your hostel to the dining hall, you make different groups and come. And last year also we want